ਇਹ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੋਤਸਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 73rd ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। This is a day to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav. On this occasion today, we are organizing a diaspora event with the participation of Indian diaspora here. First, we will do Surya Namaskar. Then all the friends of India here will take a Indo-Canadian friendship walk in the Deer Park nearby as a symbolic gesture for our friendship between the two countries, the people of two countries, on the occasion of 73rd Republic Day of India. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ। ਆਓ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਹੈ। 26 ਜਰਮਨੀ 1950 ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਹੋਇਆ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੋਤਸਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 73rd ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ, ਹੈਲਦੀ ਹੋਣ, ਵੈਲਦੀ ਹੋਣ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ, ਤਰਾਨਾ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਦੇ ਆਸਨ ਅੱਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਈਅਰ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੋਤਸਵ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 75ਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤਰਾਨਾ ਕੌਰ ਜੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵਜੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ 73rd ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਪੀਪਲ ਡੂ ਦੈਟ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਗੋ ਫॉर ਅ ਵਾਕ, ਨੇਚਰ ਵਾਕ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵੈਲਨੈਸ ਯੋਗਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਕ ਕਰਾਂਗੇ ਯੋਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि फिज़िकल मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ और सूर्य नमस्कार एक पैकेज है अगर कोई भी 15 मिनट ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯੂ ਫੀਲ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਔਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀ ਤਾਂ ਯੋਗ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਥੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਥਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨਾਲ ਨੇ ਹੋਮ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵੀਕ ਪਿਛਲੇ 6 ਵੀਕ ਤੋਂ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਤੇ ਹਰ ਮੰਡੇ ਹਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਹੌਟ ਮੀਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਹੈਗਾ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਲੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਨੀਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਅੰਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਾਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਟੀਮ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਵੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਟ ਮੀਲ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਥੀਕਲ ਵਰਕ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ इवेंट आज हम सरी मंदिर में मौजूद हैं दिस इज़ अ डे टू सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑन दिस ओकेज़न टुडे वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए डायस्पोरा event with the participation of Indian diaspora here. First we will do सूर्य नमस्कार भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है 75 करोड़ सूर्य नमस्कार तो एज पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन वी आर organizing first Surya Namaskar here. Surya Namaskar, as you know, is a part of India's yogic wisdom, and Ms. Tarana Kaur will lead the celebration here for Surya Namaskar. Then all the friends of India here will take a Indo-Canadian friendship walk in the Deer Park nearby as a symbolic gesture for our friendship between the two countries, the people of two countries, on the occasion of 73rd Republic Day of India. And this year 2022 is also important because we are celebrating 75th anniversary of India's independence. तो इसका भी महोत्सव है, आज़ादी का महोत्सव है और ये साल और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल हम इंडो कैनेडियन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की इस्टेब्लिशमेंट की 75 साल मनाएंगे सो ये सारे महोत्सव जो है वो जन भागीदारी पीपल पार्टिसिपेशन पे बेस्ड है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि सरी हिंदू टेम्पल और जितने भी उनके बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने आज हमारे साथ पार्टनरशिप करके ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और सारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इसमें भागीदारी कर रहे हैं और मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ हमारी काउंसलेट की तरफ से इस महोत्सव के लिए ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੋ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੂਰਯ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਇਵੈਂਟ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरी दुनिया में चल रहा है उसी के अंतर्गत आज मंदिर में ये कार्यक्रम रखा गया है 73rd रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया मना रहे हैं पूरा वीक मना रहे हैं 26 तारीख को कॉन्सुलेट ऑफिस से डायरेक्ट लाइव
ब्रॉडकास्ट किया गया, जो आप सबने देखा और सुना। और भारतीय लोग जहाँ जहाँ दुनिया में रहते हैं वो इन दिनों में 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो कम से कम अपने देश को जरूर याद करें। चाहे यहाँ पे जितने मर्जी साल हो गए हों, जब जब ये गीत बजता है रेडियो पे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है। तो लीजिए एक बार भारत माँ का फिर से नाम लेते हैं, सब बोलिए भारत माता की जय, कनाडा माता की जय। बहुत से लोग सिटीजन हैं कनाडा के, और हमने वो शब्द ली थी सब लोगों ने कि हम कनाडा के प्रति पूरे वफादार रहेंगे। तो वफादार रहना है, अगर हम अपनी मातृभूमि के लिए वफादार हैं तो मासी जी के लिए भी वफादार होना जरूरी है। और बहुत से लोगों के लिए मासी है हम लोगों के लिए जो हम इंडिया में पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारी मातृभूमि तो इंडिया है, लेकिन बहुत से लोग जो कनाडा में पैदा हुए हैं उनके लिए मातृभूमि है, तो उनकी मासी जी इंडिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो लीजिए विलंब ना करते हुए मैं मंदिर की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और प्रधान जी थोड़े लेट हो गए हैं, लेकिन हम कार्यक्रम शुरू करेंगे जैसे ही प्रधान जी पहुंचते हैं, वो भी आपको धन्यवाद करेंगे। तो आज के इस दिवस पर मैं आदरणीय कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया हिज एक्सेलेंसी मनीष जी को बुलाना चाहूंगा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मनीष जी। आप सबका स्वागत करें और धन्यवाद करें। बहुत खुशी है कि आज आप सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मंदिर के बोर्ड मेंबर्स का, जिन्होंने इस आयोजन में हमारी साथ भागीदारी की है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं अपनी आज़ादी का। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये जो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 तारीख को, जैसे शर्मा जी ने अभी बताया। सो ये पूरा हफ्ता आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। 23 जनवरी से शुरू हुआ, जब हमने सुभाष चंद्र बोस जो INA के लीडर थे और हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर थे, उनके लिए हमने पराक्रम दिवस मनाया। भारत सरकार ने पिछले साल अनाउंस किया था कि हर साल 23 जनवरी से को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 जनवरी को दिल्ली में उनका स्टैचू, होलोग्राफिक स्टैचू का इनागुरेशन भी किया। 23 जनवरी को हमने पराक्रम दिवस बनाया। 26 जनवरी को हमने अपनी 73वीं गणतंत्र दिवस मनाया। आज हम यहाँ मंदिर में एकत्रित होके सूर्य नमस्कार, ये सूर्य नमस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक विधि है जो कि अभी हम आप लोग सब मिलके करेंगे। तो इसको भी पॉपुलराइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इस बार जन भागीदारी के रूप में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का आयोजन किया है, जिसमें दुनिया में भारत में बट सारी दुनिया में लोग ये कर रहे हैं। और एक स्पेशल वेबसाइट क्रिएट किया गया है। आशा है कि आप लोग भी उस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करके अपने सूर्य नमस्कार करने की विधि को डालेंगे, और वहाँ पे एक आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि आपने सूर्य नमस्कार। तो ये सब सिंबॉलिक है, अच्छा लगता है। पीछे हमने राष्ट्रगान का भी कार्यक्रम किया था भारत सरकार ने, जिसमें काफ़ी लोगों हमारे जो भारतीय मूल के निवासी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो सूर्य नमस्कार में ये होलसम एक्सरसाइज है, मैं भी कभी कभी करता हूँ। तराना जी के साथ आज फिर से रिवाइव करूँगा। ये एक एक्सरसाइज है जिसकी विधि से आप हमेशा ही फिट रहेंगे, और एंशिएंट इंडियन विजडम है और हेल्थ एंड हैप्पी लिविंग के लिए बहुत ही उपयुक्त है। उसके बाद हम आज मैत्री वॉक करेंगे, भारत कनाडा मैत्री वॉक होगी, जिसमें कि अमन चैन, आपसी संबंध, वो सब को देखते हुए, ताकि लोग इकट्ठे रहें। भारतीय मूल के लोग काफ़ी हैं यहाँ पे, 1.6 मिलियन लोग हैं और बढ़ता ही जा रहा है। तो आप लोग कहते हैं कि हम तो आते हैं चले जाते हैं, रियल लोग तो आप हैं जो कि कनेक्शन है इंडिया और कनाडा में। मैं 3 साल के लिए हूँ, लेकिन आप तो
हाँ, तो आपका योगदान भारतीय और कनाडा के मैत्री में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस साल जैसे मैंने अभी सांझा टीवी को बताया कि इस साल और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रिलेशंस में 75वीं सालगिरह साल मनाएंगे। 75 इयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडो कैनेडियन रिलेशनशिप, इसकी भी 2022 में मनाया जाएगा। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इस महोत्सव में, आज़ादी का अमृत महोत्सव में। और मेरा मानना है कि आज जो भी लोग इकट्ठे हुए हैं अपने युवा पीढ़ी को वो इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूथ नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको पास ऑन करना है कि भाई अपने भारतीय मूल, भारतीय सिद्धांतों, भारतीय संस्कृति को ना भूलें और जुड़ के रहें। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में जो भी हमारे लोग हैं, ये फोकस पॉइंट है जो कि आगे हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ये पास ऑन करेगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जो मित्र हैं यहाँ वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि जो इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज है वो आगे पीढ़ियों पे पास ऑन करता रहे। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये आज का महोत्सव है। एक बार पुनः धन्यवाद हिंदू टेम्पल सरी और सभी साथियों जो यहाँ पे उपस्थित हुए। और ओवर टू यू तराना जी फॉर द योगिक सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज। थैंक यू। इससे पहले की तराना जी मंच में आए, मैं एक दो सज्जनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मंदिर की मैनेजमेंट के बहुत से लोग आए हैं जिनका सहयोग है। वनीत अग्रवाल जी हैं, मोहन मोडगिल जी हैं, आदरणीय राजेश जिंदल जी हैं। और इसके अलावा हमारे जो अतिथि आज आए हैं कश्मीर धालीवाल जी, जो हमारे सिख लीडर हैं पूरी लोअर मेनलैंड के, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हरवीर बत्रा जी का स्वागत करता हूँ। सीनियर्स टीम आई है, हांडा जी और उनके सीनियर्स ग्रुप में 100 से ऊपर लोग हैं, तो उनमें से काफ़ी लोग आज यहाँ आए हैं, सहयोग करते हैं हर कार्यक्रम में। कहा जाता है कि बच्चों के बिना कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होता है, लेकिन मंदिर का कोई भी कार्यक्रम हमारे सीनियर्स के बिना पूरा नहीं होता है, क्योंकि इनका आशीर्वाद जब तक ना मिले, कहते हैं कि सीनियर की बात लोग सुनते नहीं, लेकिन सुननी चाहिए। इनके पास तजर्बा होता है, हम गलती करके तजर्बा लेंगे, इन्होंने गलतियां कर रखी हैं पहले, तो इनके पास तजर्बा है, तो उसका तजर्बा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी जहाँ थोड़ा सा शोर हो रहा था, मैं बताना चाहता हूँ कि मंदिर की तरफ से हर वीक होमलेस शेल्टर्स के लिए खाना भेजा जाता है। हॉट मील्स का हमने उसको नाम दिया है। हमारी एक टीम है जो उसमें ट्यूसडेज एंड सैटरडेज को जो हमारे लोअर मेनलैंड के शेल्टर्स हैं, जहाँ वो लोग रहते हैं जिनके पास खाना नहीं है, खाने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, तो वो कार्य करते हैं। इसलिए वो जो लोग पैकिंग करते हैं तो थोड़ा शोर भी करते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी काफ़ी है, तो वो खाना भी 12 बजे पहुंचाना है, तो इसलिए उसमें लगे हुए हैं। राजेंद्र जी का मैं खास तौर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। कौंसिल ऑफिस से ये सारी कोऑर्डिनेशन उन्होंने की। थोड़े दिन पहले हमने यहाँ पर एक पतंगबाजी का भी कार्यक्रम किया था, तो बहुत ही एनर्जेटिक है। इसके अलावा कौंसिल ऑफिस से, कौंसलेट ऑफिस से हमारे बहुत से वहाँ के उत्तर अधिकारी आए हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आदरणीय राहुल जी हैं, ग्रोवर जी हैं, अजीत जी हैं, उनको मैं भूल नहीं सकता क्योंकि वीज़ा ऑफिसर हैं, तो उनका खास तौर पर धन्यवाद है। मेरे परम मित्र जाटव जी आए हैं और सारी टीम उनकी आई है, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सूर्य नमस्कार के बाद ब्रेकफास्ट तैयार है, सब बोलेंगे। फिर जैसे मनीष जी ने कहा कि हम वॉक पे जाएंगे, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एंड कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से ये फ्रेंडशिप वॉक है, तो सबने वॉक पे जाना है। तो वॉक से जैसे ही वापस आएंगे हमें फिर भूख लग जाएगी, तो लंच मिलेगा सबको। उसके बाद मंदिर के और कार्यक्रम है वो चलते रहेंगे। तो इसके साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और तराना जी को अब निमंत्रित करता हूँ, बुलाना चाहता हूँ कि मंच पे आएं और हमें सूर्य नमस्कार की सारी क्रियाएं बताएं और हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कराएं। पेट बढ़ रहे हैं हमारे, थोड़ा ठीक करें। एक बार तालियां बनती है तराना जी के लिए। स्वागत है आपका, आइए। वैसे तो सूर्य नमस्कार नाम से ही आपको पता चल जाता है कि हम सूर्य देवता को नमन करते हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं, साइंस भी ये कहती है कि वी आर ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वी आर लाइक अ सॉलिड फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज सूर्य। और कनाडा में आप ये महसूस करते होंगे कि रोज सूर्य के दर्शन इस तरह से नहीं हो पाते, तो कोई बात नहीं, ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है सूर्य नमस्कार को उस लेवल पे करना कि हम सूर्य से एनर्जी लेते हैं,
और अब उस एनर्जी का हम धन्यवाद कर रहे हैं। सन सैल्यूटेशन, इसका मतलब यही है कि उस ग्रैटिट्यूड फीलिंग के साथ आप सूर्य के साथ कनेक्ट हों और ये याद रखें, ये वेद कहते हैं हमारे अंदर 1000 सूर्य की पावर है और ये पावर आप खुद जागृत कर सकते हैं रोजाना करके। और यहाँ मैं एक बात और जरूर दोहराऊंगी, यहाँ पर आने के बाद मेरी ड्यूटी लगी, आई एम अ सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फॉर डाइवर्सिटी, और इस बार हम 75वां हमारा आज़ादी दिवस मना रहे हैं। और मैं जरूर बताना चाहूंगी कि 75 सीनियर्स हमारे साथ योग करते हैं और वो कर रहे हैं डेली, और उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। सो नाउ वी विल वन राउंड वी विल डू एज इफ कि हम एक इंस्ट्रक्शन के साथ, फिर हम चैंटिंग के साथ, आप हमें देखते रहें और कोशिश करें जितनी करें। योग में एक चीज जरूर होती है, अपने शरीर को सुनें, उतना करें जितना आप कर पाए। एक ही दिन में कोई रेस नहीं जीत पाता, और ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ना पड़ोसी के लिए ना किसी और के लिए। सो डू एज मच एज यू कैन and with a smile and feeling the gratitude towards whatever we have in our lives because of the energies all around and surrounding us. So let's come to the top of your mat and kindly stand. Before we do, let us stretch our body. So let your Tadasana, arms straight, and now just to give a nice stretch, let's lift our heels up. Take a deep breath and stretch your arms. अपने हाथों, अपने कमर, अपने टांगों को खींचें जितना हो सके। बहुत बढ़िया। धीरे से एड़ी को नीचे लेकर आएं और अपने पंजों को उठाएं। देखें किस तरह से आपके पांव जमीन पर सटे हुए हैं। धीरे से पंजों को रिलैक्स करें, हाथ को खींचें और दाहिनी तरफ खींच कर ले जाएं। जिस तरह अपने हाथ को आप देख सकते हैं, अपने कमर के खिंचाव को महसूस करें, वापस ले आएं। फिर से हाथ ऊपर और बाएं तरफ खींच कर ले जाएं जितना हो सके। फिर धीरे से वापस दोनों हाथों को नीचे ले आएं। थोड़ा सा सामने हाथ को ले जाते हैं। सारा दिन लैपटॉप और फोन पर है, उंगलियों की थोड़ी सी कसरत। बहुत बढ़िया। अंगूठा अंदर, 4 उंगलियां अंदर, मुट्ठी घुमाएं। चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी बढ़ जाए। दूसरी तरफ। बहुत बढ़िया। अब हाथ को नीचे। अब हम इस I'll just instruct how we do it and then we will do it together. दोनों हाथों को साइड से ले जाएंगे ऊपर, नमन करेंगे हाथ जोड़कर, और यही नीचे ले आएंगे छाती के पास। इस तरह से पहला आसन होता है। फिर हाथ को उठाएंगे ऊपर और पीछे की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ते धीरे धीरे हाथ और शरीर को नीचे ले जाएंगे। हो सकता है आपका हाथ नीचे नहीं जा रहा, थोड़े घुटने को मोड़ लेंगे। ब्रीद आउट। अब धीरे से आप दाहिना पांव पीछे ले जाएंगे, दाहिना घुटना नीचे रखेंगे। एडजस्ट कीजिए, दाहिना घुटना नीचे रखिए। बायां घुटना मुड़ा हुआ है, दाहिना घुटना नीचे है, शरीर ऊपर खिंचा हुआ है, छाती गर्दन खिंच रही है। अब आप दाहिना घुटना दाहिने पंजे के ऊपर अपने दाहिने घुटने को उठाया, बायां पैर पीछे ले गए और वी शेप की तरह अधोमुख श्वान किया। अपने कमर को पैर की तरफ खींचेंगे। बहुत बढ़िया। दोनों घुटने को नीचे जमीन पर ले आए। पहले थोड़ी देर सांस लें, बॉडी को रिलैक्स करें, और अब हमें कोशिश करनी है छाती को दोनों हाथों के बीच लेके जाना है, ठोड़ी को जमीन पे लगाना है। कोशिश करें, नहीं तो बॉडी को सीधा फ्लैट करें। अब सांस भरते शरीर को ऊपर खींचें और देखें ऊपर। जो कमर में खिंचाव हो रहा है होने दें। सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। अब दोनों पंजों के बल पर
अपने शरीर को फिर से वी शेप में ले जाए। अब बायां घुटना नीचे रखेंगे और दाहिना पांव आगे लेकर आएंगे दोनों हाथों के बीच। कोशिश करेंगे, बायां घुटना उठाएंगे और बायां पांव आगे ले आएंगे और धीरे से कमर गर्दन सीधी करके अपने हाथ को विश्राम देंगे। आपने किया ये दाईं तरफ से, अब बाईं तरफ से करेंगे। फिर से नमन, ऊपर दोनों हाथ को ले आएंगे छाती के पास, सूर्य को ध्यान करेंगे, फिर हाथ को ऊपर ले जाएंगे ऐसे जैसे सूर्य को ओम नमन कर रहे हैं और ग्रैटिट्यूड फीलिंग के साथ दोनों हाथों को नीचे धरती की तरफ, दोनों पांव को थोड़ा मोड़ लें ताकि एडजस्ट कर सकें। अब आप दाएं पांव को पीछे ले जाएंगे, बाएं पांव और बाएं घुटने को नीचे रखें। लेफ्ट नी बैक, stretch your head spine up. Now lift your left knee up and taking your right leg back, stretch into V shape, Adho Mukha Swan. Breathe out. Putting both knees down and trying to bring the chest in between your palms, chin on the floor. Your abdomen stays up. Ashtanga Namaskar. Body flat down. Stretch your head spine up. Look up. Urdhva Mukha Svanasana. On your toes, stretch your body into Adho Mukha Swan, V shape again. This time bend your right knee down. Bring your left foot forward. Stretch your right knee up and bring your right foot forward. Stretch your spine up. Breathe out. Great. Let's do it together.
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਤੀਸ਼ ਜੀ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਜਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ, ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਸਾਰੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਵਾਕ ਕਰਕੇ 12 ਡਿਨਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਦੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਰੈਡੀ ਆ, ਜੂਸ, ਫਰੂਟਸ, ਸੈਂਡਵਿਚਸ, ਵੈਜੀ ਸੈਂਡਵਿਚਸ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਫॉर द ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਹੈਲਥੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵਾਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਬੀਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ।